Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. आप लास्ट लेक्चर से कोई क्वेश्चन, लास्ट लेक्चर में हम कुछ कैश बजट पे डिस्कशन कर रहे थे। सादिक लिमिटेड का क्वेश्चन हमने देखा था और उसके बाद हमने लोटस एंटरप्राइज में सिर्फ कैश रिसीट्स की साइड को डिस्कस किया था। लास्ट लेक्चर से कोई क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम? ऑटम 16 क्वेश्चन 1 लोटस एंटरप्राइजेस पेज 250 पे आ रहा है जी हमारे पास। इसमें रिक्वायरमेंट है प्रिपेयर कैश बजट फॉर द नेक्स्ट ईयर। Assume that all transactions occur evenly throughout the year unless otherwise specified, 360 days in a year। अच्छा, इसको क्वेश्चन को लास्ट लेक्चर में सिर्फ इसकी रिसीट साइड देखी थी। अब हम ज़रा डिटेल में क्वेश्चन पढ़ते हैं। हमने क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ा था, पूरा क्वेश्चन हम देखते हैं। The following information has been extracted from the projected financial statements of Lotus Enterprises for the year ending 30th September 2016। एक्सट्रैक्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। सेल्स 3000, रॉ मटेरियल कंजम्पशन 900 million, रॉ मटेरियल इन्वेंट्री इंक्लूडिंग इंपोर्ट्स ऑफ 98 million, कन्वर्जन कॉस्ट वेरिएबल 570, कन्वर्जन कॉस्ट फिक्स्ड इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन 40, ऑपरेटिंग कॉस्ट variable, fixed operating costs including depreciation 120, trade debtors, trade creditors, local purchases 95, advance to suppliers for import of raw material। जो raw material import है उसके अगेंस्ट एडवांस है और जो raw material local purchase है उसमें हम क्रेडिट पे ले रहे हैं। 95 million का क्रेडिटर्स हैं। LE is in the process of preparing budget for the next year। Sale volume, the relevant information is as under. Sale volume is projected to increase by 30%. In order to finance the additional working capital, the management has decided to adopt the following measures। Sales बढ़ने से, volume बढ़ने से जो हमारी investment की requirement बढ़ेगी, जिसको हम working capital requirement कहते हैं, ज़्यादा debtors, ज़्यादा inventory will be needed। उसके लिए कंपनी ने क्या फैसला किया है? Introduce cash sales at discount of 2%. It is estimated that 20% of the customer would avail that discount। The present average collection period is 45 days। LE has decided to improve follow-ups which would ensure collection within 40 days। 40% of the raw material consumed is imported, which is paid in advance on the placement of purchase order। The delivery is made within 30 days after the placement of order। LE has negotiated with the foreign supplier and agreed that from the next year payments would be made on the receipt of goods। पहले एडवांस पे खरीदते थे, अगले साल जिसका बजट बनाना है गुड्स डिलीवर होंगी, फिर पेमेंट की जाएगी इंपोर्टेड के लिए। लोकल परचेजेज वुड बी पेड इन 50 days। एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज्ड प्रोडक्शन, economies of scale would reduce variable conversion cost per unit by 5%। Due to price increases, cost of raw material and all other costs excluding depreciation would increase by 10 and 8% respectively। Raw material 10% से, other costs 8% से। Average days for payment of other cost would remain the same, that is 25 days। Creditors का payment 50 days है, other cost का payment days 25 days होंगे। There is no opening and closing finished goods inventory। Quantity of closing local and imported raw material as a percentage of raw material consumption would remain the same। उसने ये नहीं कहा quantity of closing local and imported raw material would remain the same, उसने कहा जी quantity as a percentage of consumption would remain the same। LE uses FIFO method of valuation of inventory। Prepare cash budget। There are so many variables in any cash budget या budgeting question। So
अब इसको एक दफ़ा फिर मैं चाहूँगा कि आप लोग ख़ुद भी पढ़ लें ताकि आप मैक्सिमम डाटा कैप्चर कर सकें। रिसीट्स पे हम बात कर चुके हैं, हमने पेमेंट्स पे बात करनी, तो फिर रीड आउट कीजिए इस क्वेश्चन को ज़रा, ताकि डाटा को एब्जॉर्ब कर सके मैक्सिमम। रिसीट्स लास्ट लेक्चर में हम मैयर कर चुके थे। पेमेंट से हमें बात शुरू करनी है। पेमेंट्स हमारे पास 3 तरह की आएंगी। 3 पेमेंट्स क्यों हैं? क्योंकि हमें 3 पेबल्स के पैटर्न नज़र आ रहे हैं। एक पेबल का पैटर्न एक्सपेंसेस का है, जिसमें 25 दिनों बाद पेमेंट की जाती है। दूसरा पेमेंट का पैटर्न लोकल परचेजेस का है, जिसमें पेमेंट परचेज के 50 डेज़ बाद की जाती है। तीसरा पेमेंट का पैटर्न इंपोर्टेड मटेरियल का है, जिसमें पेमेंट पिछले साल तक एडवांस में की जाती थी, आइंदा से रिसीट बेसिस पे की जाएगी, मतलब आइंदा एडवांस हमें देने की ज़रूरत नहीं होगी। अच्छा जी, सबसे पहले हम एक्सपेंसेस पे बात शुरू करते हैं। ये हम डील कर चुके हैं, ये वर्किंग हैंडल हो चुकी है। मैं इसी को वर्किंग नंबर 1 दोबारा दे रहा हूँ। हो सकता है पहले कोई नंबर लग चुका हो पिछले जब हमने लास्ट डिस्कशन की थी। मैं फ़िलहाल इस आज के हिसाब से वर्किंग नंबर 1 एक्सपेंसेस को दे रहा हूँ। एक्सपेंसेस में अगर आप ये जो एक्सट्रैक्ट उसने दिया हुआ है P&L का, हमारी 4 तरह की कॉस्ट हैं। कन्वर्जन कॉस्ट, वेरिएबल फिक्स, ऑपरेटिंग कॉस्ट, वेरिएबल फिक्स। ये 4 कॉस्ट हैं। इन 4 में क्या चेंजेस आनी है, उसकी प्रोजेक्शन का डाटा उसने हमें दिया हुआ है। पिछले साल की कॉस्ट पता है, अगले साल की कॉस्ट हम प्रोजेक्ट कर सकते हैं। पिछले साल की कॉस्ट से ओपनिंग पेएबल आएगा, पिछले साल की कॉस्ट से पिछला क्लोजिंग पेएबल होगा ना, जो हमारे बजटेड पीरियड का ओपनिंग होगा। सो पिछले साल की कॉस्ट से ओपनिंग पेएबल आएगा, करंट ईयर कॉस्ट से क्लोजिंग पेएबल आएगा। तो हमारी जो इक्वेशन बनेगी यहाँ पे से वर्किंग 1 में, दैट विल बी इक्वेशन पेबल का काउंट, या आप टी काउंट से चलें, आप टी काउंट से करते आ रहे हैं उसी से बना लेते हैं हम एक्सपेंसेस पेबल का अकाउंट बनाते हैं, एक्सपेंसेस पेबल का अकाउंट बनाते हैं। इसमें ब्रॉड डाउन बैलेंस यहाँ पे होगा, फिर एक्सपेंसेस जो इनकर्ड हुए हैं वो इधर क्रेडिट होंगे, फिर आपका कैरी डाउन यहाँ से आना है, और ये आपकी कैश पेमेंट है विच वैल्यू यू आर लुकिंग फॉर। वर्किंग 1, अब यहाँ से 1 बाय 1, 1.1 में हम ब्रॉड डाउन लाते हैं, 1.2 में हम एक्सपेंसेस लाते हैं, और 1.3 में कैरी डाउन लाते हैं। दिस विल बी आवर बैलेंसिंग फिगर। हम टी काउंट से इसको हैंडल करते आ रहे हैं, पेएबल रिसीवेबल को, तो हम टी काउंट से इसको लेके चलते हैं। बैलेंस ब्रॉड डाउन, उसके लिए हमें पिछले साल के एक्सपेंसेस की डिटेल चाहिए। तो पिछले साल के एक्सपेंसेस की डिटेल हम यहाँ बनाते हैं। हमारे पिछले साल के एक्सपेंसेस थे जी, वेरिएबल 570 प्लस फिक्स्ड कन्वर्जन कॉस्ट 40, लेकिन इसमें से डेप्रिसिएशन तो निकलेगी ना 16 की,
प्लस वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट 730 प्लस फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट 120, लेकिन इसमें से भी डेप्रिसिएशन निकलेगी। ये पिछले साल की हमारी कैश कॉस्ट है और हमें कहा गया है कंपनी की पॉलिसी है 25 दिन बाद पेमेंट होती है, तो 25 दिन के एक्सपेंसेस हमारे पेएबल में खड़े होंगे। ये लीजिए जी, ये आपके 25 दिन के एक्सपेंसेस आ गए। कितने बनते हैं जी 25 दिन के एक्सपेंसेस? ये बैलेंस ब्रॉट डाउन आपका 98.40 मिलियन। दिस इज योर बैलेंस ब्रॉट डाउन 98.40 बैलेंस पेएबल। एक्सपेंसेस पेएबल ब्रॉट डाउन। एक्सपेंसेस पेएबल सिर्फ कैश कॉस्ट के अगेंस्ट स्टैंड करते हैं। हमें जो कॉस्ट की डिटेल, एक्सपेंसेस की डिटेल दी गई, उसमें कैश कॉस्ट भी थी, नॉन कैश भी थी, तो हमने नॉन कैश को बीच में से लेस कर दिया, डेप्रिसिएशन को बीच में से डिडक्ट कर दिया। तो हमारा ओपनिंग बैलेंस जो ब्रॉट डाउन आया वो 98.40 है, जो कि पिछले साल के एक्सपेंसेस पे बेस्ड है। एनी क्वेश्चन? कोई सवाल जी? अच्छा, इसके बाद अब हमने पिछले साल की हर कॉस्ट को पकड़ना है, 570, 24, 730 एंड 93। हर कॉस्ट को पकड़ना है और इसको अगले साल के लिए बजट करना है, फोरकास्ट करना है, यूजिंग इंफॉर्मेशन जो उसने हमें दी हुई है नीचे नोट नंबर 1 से 7 तक। लेट्स टॉक अबाउट 570। 570 कॉस्ट जो हमारी वेरिएबल कन्वर्जन कॉस्ट है। वेरिएबल कन्वर्जन कॉस्ट के बारे में, वेरिएबल कॉस्ट को क्या क्या हिट करता है? वॉल्यूम, इन्फ्लेशन। वॉल्यूम के बारे में उसने बताया, वॉल्यूम विल इंक्रीज बाय 30%। अच्छा, यहाँ पे एक तवज्जो चाहिए, वेरिएबल कॉस्ट, ये छोटी छोटी चीज़ें आपके ध्यान में क्लियर होनी चाहिए, क्वेश्चन आपको ट्रिक कर सकता है। वेरिएबल कॉस्ट जो पीएनएल में आ जाती है, इसका ताल्लुक प्रोडक्शन से होता है। यहाँ पे इसने क्या क्या, प्रोडक्शन 30% से बढ़ेगी, क्या लिखा हुआ है? सेल 30% से बढ़ेगी। सो आपको क्लियर होना चाहिए, वेरिएबल कॉस्ट का ताल्लुक प्रोडक्शन चाहिए, सेल में इजाफा है। लेकिन साथ ही इस क्वेश्चन का अगर नोट रिकॉल करें, देयर इज नो इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स। फिनिश गुड की इन्वेंट्री है ही नहीं, तो इसका मतलब सेल्स इज इक्वल टू प्रोडक्शन। ये चीज़ें आपके जहन में चलनी चाहिए। एग्जाम में आपको सवाल है, उसमें हो सकता है ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स भी दिया जाए, तो आपको वहां से फिर प्रोडक्शन में इंक्रीज निकालनी पड़ेगी। कितनी? सेल में 30% इंक्रीज का मतलब प्रोडक्शन में कितना इंक्रीज है, क्योंकि कॉस्ट में इंक्रीज तो प्रोडक्शन से लिंक होता है। ठीक है जी। बट यहाँ पे हमने क्या समझा कि यहाँ पे सेल्स में इंक्रीज 30% है, लेकिन फिनिश गुड की इन्वेंट्री 0 है, तो जितनी सेल में सेल इज इक्वल टू प्रोडक्शन हो गई, तो जितना सेल में इंक्रीज उतना ही प्रोडक्शन में इंक्रीज है। ठीक है, तो सवालों को ध्यान से पढ़ना है और वेरिएबल्स को समझना है कि वेरिएबल्स में आपस में रिलेशनशिप क्या होता है। तो सेल्स की इंक्रीज फर्क हो सकता है प्रोडक्शन से, अगर ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूज आपको दी जाएंगी। ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूज दी जाए तो जरूरी नहीं जितना सेल में इंक्रीज है प्रोडक्शन में भी उतना आए। कॉस्ट में इंक्रीज का ताल्लुक प्रोडक्शन इंक्रीज से होता है। तो बहरहाल यहाँ पे तो प्रोडक्शन, एक तो हमने कहा जी वेरिएबल कॉस्ट में हम इसकी बात कर रहे हैं, एक प्रोडक्शन की वजह से इंक्रीज आना है। दूसरा, नोट नंबर 3, अदर कॉस्ट विल इंक्रीज बाय 8% इन्फ्लेशन। दूसरा इंक्रीज इन्फ्लेशन का आ गया, लेकिन यहां पे एक तीसरा इंपैक्ट भी है, दैट इज नोट नंबर 2, इकोनॉमीज ऑफ स्केल की वजह से वेरिएबल कॉस्ट 5% से कम होगी। इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या होते हैं जी? जब आपका वॉल्यूम बढ़ता है, जैसे यहाँ पे सेल्स आपकी 30% बढ़ रही है, प्रोडक्शन 30% बढ़ रही है, तो बाज़ का हायर वॉल्यूम की वजह से आपको कुछ बेनिफिट्स मिल जाते हैं, जैसे मे बी रॉ मटेरियल सप्लायर आपको डिस्काउंट दे दे, हायर वॉल्यूम की वजह से डिस्काउंट्स आपको मिल जाते हैं। ठीक है, तो उसने कहा इकोनॉमीज ऑफ स्केल की वजह से आपकी वेरिएबल कॉस्ट 5% कम होने वाली है। इसका मतलब इस 570 पे अगले साल 3 इंपैक्ट आने वाले हैं। 570 में 30% इजाफा आएगा वॉल्यूम का, 8% इजाफा आएगा इन्फ्लेशन का, और 5% कमी आएगी इकोनॉमीज ऑफ स्केल की। ये वेरिएबल कन्वर्जन कॉस्ट अगले साल हमारी क्या होगी? पिछले साल की कॉस्ट 570 थी, सेल्स वॉल्यूम 30% से बढ़ेगा तो प्रोडक्शन वॉल्यूम में 30% इजाफा, कॉस्ट में इजाफा इन्फ्लेशन की वजह से 8% आना है, लेकिन इकोनॉमीज ऑफ स्केल की वजह से 5% कमी आनी है। ये तीनों चेंजेस आपने इनकॉर्पोरेट की, 1 2 3,
नॉर्मली हम दो चेंजेस लेते हैं, वॉल्यूम और इन्फ्लेशन। यहाँ पे इकोनॉमीज ऑफ स्केल आ गई, तीसरी चीज़ आ गई, कोई बात नहीं, इसको भी ले लेंगे। जैसे लेबर कॉस्ट होती तो लेबर कॉस्ट में नॉर्मली हम वॉल्यूम और इन्फ्लेशन लेते हैं, लेकिन तीसरा फैक्ट भी हम लेते आए हैं, कौन सा? एफिशिएंसी का। एफिशिएंसी कम हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, तो तीन तीन इम्पैक्ट आ जाते थे ना। इसलिए कहा जाता है सवाल को ध्यान से पढ़िए, हर वेरिएबल के इफेक्ट्स को देखिए कहाँ कहाँ जा रहा है। तो ये जी हमारी 570 जो पिछले साल थी, अगले साल कॉस्ट क्या होगी, हम एक्सपेंसेस की डिटेल बना रहे हैं, अगले साल हमारे एक्सपेंसेस क्या आने वाले हैं जी। एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? पिछले साल हमारे वेरिएबल कन्वर्जन कॉस्ट 570 था, अगले साल हमारा वेरिएबल कन्वर्जन कॉस्ट कहाँ जाएगा, वो आ गया। पिछले साल हमारी फिक्स कॉस्ट 24 थी। फिक्स कॉस्ट में चेंजेस कहाँ से आती हैं? इन्फ्लेशन से, तो वो तो 8% उसने बताया है। सो 24 इंटू 1.08, मैं हर एक लाइन में ज़्यादा कॉस्ट को ट्रीट करता जा रहा हूँ। ये कन्वर्जन वेरिएबल ट्रीट होगी, ये कन्वर्जन फिक्स होगी। अब आइए ऑपरेटिंग वेरिएबल की तरफ। 730 इज आवर ऑपरेटिंग वेरिएबल कॉस्ट। इसमें क्या क्या चेंजेस आएंगे जी? एक वॉल्यूम, एक इन्फ्लेशन। कोई इसमें तीसरी कोई चेंज का जिक्र है? कोई जिक्र नहीं है। तो इसमें एक वॉल्यूम का इजाफा 30% और एक इन्फ्लेशन का इजाफा 8%। आखिरी कॉस्ट 93 मिलियन हमारी ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट है, और फिक्स कॉस्ट में इजाफा इन्फ्लेशन से आता है, इसके अलावा कोई यहाँ पे जिक्र नहीं है। सो इन्फ्लेशन लीजिए। अगले साल हमारी कॉस्ट कहाँ जाएगी? इन चारों वैल्यूज़ को कैलकुलेट कीजिए, सम बताइए जी। 2594.83। अगले साल हमारी कॉस्ट अंडर द 4 हेड्स जो हमें क्वेश्चन में गिवन है कहाँ जाएगी जी? बोलिए। 1911 जी। एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? एक्सपेंसेस की फिगर आ गई, एक्सपेंसेस हमारे पास आ गए। थर्ड फिगर पेबल की है, तो एक्सपेंसेस आपके पास हैं। पेबल्स उसने कहा वही 25 डेज पे ही रहने वाले हैं। जो कैरी डाउन बैलेंस है ये एक्सपेंसेस थे। कैरी डाउन बैलेंस इसी वैल्यू 1911.56 डिवाइड विद 360 इंटू 25। सो पेबल का फिगर क्या आया क्लोजिंग आपका? 132.75 लीजिए। यहाँ से अब कैश की फिगर 1877.21। कैश पेमेंट्स हमारी अगेंस्ट एक्सपेंसेस 1877.21 जी। एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? एक्सपेंसेस के अगेंस्ट कैश पेमेंट पे कोई सवाल? परचेजेस के अगेंस्ट पेमेंट्स, वर्किंग टू, हम ट्रेड पेबल्स का लेजर बना लेंगे जी। यहाँ पे ट्रेड पेबल्स में बैलेंस ब्रॉट डाउन होगा, आपकी परचेजेस आएंगी, बैलेंस कैरी डाउन होगा, और यहाँ पे ये कैश की फिगर विच विल बी योर बैलेंसिंग फिगर। ये आपको फिगर चाहिए अपने बजट में इनकॉर्पोरेट करने के लिए। ट्रेड क्रेडिटर्स का बैलेंस जो ओपनिंग है दैट इज़ अवेलेबल इन द एक्सट्रैक्ट। आपको जो बैलेंस शीट P&L एक्सट्रैक्ट दिया है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक्सट्रैक्ट, सेकंड लास्ट लाइन उसकी कितना है? 95 मिलियन। पेबल अगेंस्ट लोकल परचेजेज 95 मिलियन। अब आपको परचेजेस की फ़िगर चाहिए। परचेजेस की फ़िगर मिल जाए तो उससे आप क्लोजिंग पेबल निकालेंगे 50 दिन की परचेज़ के बराबर। हमें परचेज़ की फ़िगर चाहिए, इसके लिए शायद अब हमें वर्किंग 2.1 बनानी पड़ेगी। परचेज़ की फ़िगर किस इक्वेशन से आती है जी? रॉ मटेरियल कंजम्पशन प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। हमारी जो इक्वेशन है परचेजेस पे जाने की, रॉ मटेरियल कंजम्पशन प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक।
अब यहाँ पे फिर वही FIFO वाला चक्कर आने जा रहा है जी, जो मैं कह रहा था हर सवाल में हमें नज़र आ रहा है, इनवेरिएबली मुसलसल 3-4 अटैम्प्ट में आया है। FIFO मेथडोलॉजी है और रॉ मटेरियल स्टॉक की पॉलिसी कंपनी की है। क्या पॉलिसी है जी? रॉ मटेरियल स्टॉक की पॉलिसी कहाँ पे गिवन है? हाँ जी, नोट नंबर 6 में। ओपनिंग रॉ मटेरियल उसने हमें बताया हुआ है टेबल में, रॉ मटेरियल इन्वेंट्री इंक्लूडिंग इंपोर्ट्स ऑफ 158, इसका मतलब लोकल रॉ मटेरियल इसमें 68 का है। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल हमें पता है। नोट नंबर 6 में वह कह रहा है क्वांटिटी ऑफ क्लोजिंग लोकल एंड इंपोर्टेड रॉ मटेरियल एज अ परसेंटेज ऑफ रॉ मटेरियल कंजम्पशन वुड रिमेन द सेम। कैश बजट के लिए जो हमने वर्किंग सीखी थी उसमें हमने कहा था जी अब रॉ मटेरियल कंजम्पशन का ताल्लुक तो दो एंगल से, दो इफेक्ट आते हैं उसमें, एक वॉल्यूम का, एक प्राइस का। कंजम्पशन का ताल्लुक वॉल्यूम से है, कंजम्पशन का ताल्लुक प्राइस से है। हमें कहा गया है कि प्रोडक्शन बढ़ेगी 30% से, सेल 30% मतलब प्रोडक्शन 30%, तो इसका मतलब कंजम्पशन ने 30% से बढ़ना है। और हमें कहा गया है रॉ मटेरियल की प्राइस ने भी 10% से बढ़ना है। कंजम्पशन ने बढ़ना है 30% से, प्राइस ने बढ़ना है 10% से, लेकिन चैलेंज क्या है? FIFO। सारी कंजम्पशन की प्राइस नहीं बढ़ेगी, कंजम्पशन में कुछ ओपनिंग स्टॉक है, कुछ ओपनिंग स्टॉक है, उसकी प्राइस असरअंदाज नहीं डालती। तो हम करेंगे क्या, जो हमने लास्ट क्वेश्चंस में 2 क्वेश्चन हमने किए थे इस पैटर्न पे, हम रॉ मटेरियल कंजम्पशन की फिगर लाएंगे एट ओल्ड प्राइस, इसमें ऐड करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ये भी ओल्ड प्राइस पे होगा, इसमें से लेस करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ये भी ओल्ड प्राइस पे होगा। तो हमें फिगर मिल जाएगी रॉ मटेरियल परचेजेस, ये भी लास्ट ईयर प्राइस पे। फिर क्या करें, इसमें प्राइस इंक्रीज डाल दें, तो ये हमारी बजटेड परचेजेस आ जाएंगी, बजटेड लोकल परचेजेस। ये वर्किंग हमने पीछे 2 सवाल हमने किए हैं, 2 सवालों में हम ये वर्किंग बना चुके हैं। कैश बजट जहाँ पे FIFO मेथड इस्तेमाल हो रहा हो, आप परचेजेस की फिगर कैसे एस्टिमेट करेंगे। पिछले 2 क्वेश्चंस में हमने बिल्कुल सिमिलर वर्किंग वहाँ पे एस्टैब्लिश की थी। रॉ मटेरियल कंजम्पशन एट ओल्ड प्राइस ले लें, इसमें ऐड करें क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, लेस करें ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, आपको रॉ मटेरियल परचेजेस मिलेंगे, ये भी ओल्ड प्राइस पे। इसमें सिर्फ परचेजेस में आपने प्राइस इंक्रीज डालनी है, आपके पास नेक्स्ट ईयर परचेज फिगर आ जाती है जो बजट में आपने यूज करनी है। रॉ मटेरियल कंजम्पशन, पिछले साल की कंजम्पशन कितनी है जी? 900। ये बट ये तो टोटल है, हम तो लोकल की बात कर रहे हैं। लोकल कंजम्पशन कितनी है हमें उसने बताया हुआ है नोट नंबर 1 की बुलेट नंबर 3, 40% रॉ मटेरियल कंज्यूमर इज इंपोर्टेड। इसका मतलब लोकल इज, पिछले साल 900 का 60% लोकल था, अगले साल ये 30% प्रोडक्शन बढ़ने से बढ़ जाएगा, सिर्फ वॉल्यूम का इंक्रीज डालें। अगले साल ये कहां पे जाएगा? 702 रुपीज इन मिलियन, इट विल बी 702.00। पिछले साल ये 900 का 60% था, हम लोकल पे बात कर रहे हैं, लोकल कंजम्पशन पे बात कर रहे हैं, लोकल रॉ मटेरियल कंजम्पशन पे बात कर रहे हैं। अगले साल सिर्फ वॉल्यूम का इंक्रीज डालो, प्राइस चेंज नहीं करनी, 702 हो गया। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल मैंने अभी आपसे शेयर किया था, 158 टोटल था, 98 इसमें इंपोर्टेड था, तो लोकल था इसमें 60, ये हमने लेस करना है। ये फिगर हमें पता है। अब हमें क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल चाहिए, उसके लिए नोट नंबर 6 हमने पढ़ा था। ये यहां तक रॉ मटेरियल कंजम्पशन एट लास्ट ईयर प्राइस एंड ओपनिंग स्टॉक, इन 2 वैल्यूज में कोई दिक्कत? ओपनिंग स्टॉक
क्वेश्चन में गिवन है 158 माइनस 98, ये फिगर रेडीली अवेलेबल थी। कंजम्पशन हमने लास्ट ईयर कंजम्पशन में सिर्फ वॉल्यूम इंक्रीज डाली, क्योंकि प्राइस को हम बाद में हैंडल करना चाह रहे हैं, क्योंकि प्राइस हमने सारी कंजम्पशन पे नहीं लगानी, प्राइस तो हमने सिर्फ परचेजेस पे, करंट ईयर परचेजेस पे लगानी है। हमें करंट ईयर परचेज की फिगर चाहिए जी। एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? नोट नंबर 6 में कहता है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एज अ परसेंटेज ऑफ कंजम्पशन वुड रिमेन द सेम। इसका क्या मतलब? ऐसा नहीं लिया जाएगा कि जितनी कंजम्पशन की क्वांटिटी बढ़ेगी क्लोजिंग स्टॉक की क्वांटिटी भी उतनी बढ़ जाएगी। एक ही बात है ना, एक ही बात है ना। उसने कहा परसेंटेज ऑफ, फॉर एग्जांपल अगर आपका कंजम्पशन, आपकी अज्यूम करें कंजम्पशन आपकी है 100 किलो और से क्लोजिंग स्टॉक आपका है 10 किलो, इसका मतलब क्लोजिंग स्टॉक का कंजम्पशन कितना है? 10%। उसने कहा ये परसेंटेज सेम रहनी है। परसेंटेज सेम रहने का मतलब क्या है कि अगर आपकी कंजम्पशन 150 चली जाएगी तो आपका क्लोजिंग स्टॉक कहां पे आएगा? 15 पे। ऐसा ही है जी। तो ये अगर 50% से बड़ी है तो ये भी 50% से बड़ी है, तभी ये 10% का 10% मेंटेन रहा ना। उसने हमें कहा क्लोजिंग स्टॉक एज कंजम्पशन फिक्स्ड रहेगा, तो इसका मतलब दूसरा जो बनता है जितना कंजम्पशन में इजाफा आ रहा है उतना ही क्लोजिंग स्टॉक में भी इजाफा आएगा। तो कंजम्पशन में कितना इजाफा आ रहा है? कंजम्पशन में इजाफा क्वांटिटी में कितना आ रहा है? 30% का। कंजम्पशन में इजाफा वॉल्यूम की वजह से 30% का आ रहा है। तो सेम यही इजाफा क्लोजिंग स्टॉक में भी आ जाएगा। पहले 60 था, 30% से क्लोजिंग स्टॉक भी बढ़ जाएगा। कहां चला जाएगा? 78। लीजिए जी, इक्वेशन बनाइए परचेजेस की फिगर। 720 और इसमें 10% 792। ये है जी हमारी लोकल परचेजेस। ये बिल्कुल आइडेंटिकल वर्किंग है जो हमने पहले 2 सवालों में हैंडल की है। सिर्फ इन्वेंट्री के बारे में उसने नई चीज़ दी, नया एक जुमला लिखा, बट वो जुमला हम सिर्फ पढ़ें तो हमें पता लगना चाहिए वो क्या कह रहा है। उसने कहा जी क्लोजिंग स्टॉक में का परसेंटेज एज कंजम्पशन वुड रिमेन द सेम, मतलब जितना पिछले साल क्लोजिंग स्टॉक एज कंजम्पशन थी अगले साल भी वही रहने वाली है। तो हमें पता है कि पिछले साल 60 मिलियन की इन्वेंट्री थी और हमें पता है कि हमारी कंजम्पशन में 30% वॉल्यूम का इजाफा आया। क्वांटिटी की बात हो रही है तो सिर्फ वॉल्यूम का इजाफा लिया जाएगा, तो वही वॉल्यूम का इजाफा हमने इसमें डाल दिया। कंजम्पशन 30% बढ़ी है तो क्लोजिंग स्टॉक भी 30% बढ़ना चाहिए पिछले साल से अगले साल तक जाते जाते। पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक 60 था, अगले साल 30% बढ़ के 78 पे आना चाहिए। पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक हमारे इस पीरियड का ओपनिंग स्टॉक बन रहा है जी। परचेजेस की फिगर 792। इस सवाल की प्रेजेंटेशन मैं आपसे, जो मैं शुरू से बार बार एक चीज़ कहता आ रहा हूँ कि आप एग्जामिनर के फॉर्मेट्स का ऑडिट ना किया करें। एग्जामिनर के हर सवाल का फॉर्मेट फ़र्क होता है, सेम वर्किंग को प्रेजेंट करने का फॉर्मेट फ़र्क होता है। अब जैसे मैंने ये आपको वर्किंग उसी अंदाज में प्रेजेंट की जिससे आप फेमिलियर हैं। अब ये आप फॉर्मेट एग्जामिनर का समझना जाओगे तो आपको 4 घंटे लग जाएंगे, समझ नहीं आएगी उसने क्या किया हुआ है। आपको लगेगा शायद कोई नई चीज़ आ गई है। आप परेशान चीज़ों को पास पेपर को देख के इसलिए होते हो कि आप उसके जवाब के फॉर्मेट्स में जैसे प्रेजेंट किया गया वैसे समझने की कोशिश करते हो, विच एट टाइम इज़ कॉम्प्लेक्स। ये वर्किंग मैंने आपसे पेबल की शेयर की इतनी थी, अगर आप सिर्फ इस पेज के 251 पे जाओ तो उसने इतना बड़ा 4-5 कॉलम 6 कॉलम का टेबल बना के उसमें यही वर्किंग शो की हुई है। यही 740, ये जो 1877 की फिगर है आपके सामने, उसने ये 4 कॉलम राइट साइड पे आपको नज़र आ रहा होगा, पेमेंट ऑफ फॉर एक्सपेंसेस। वो 4 कॉलम में उसने वर्किंग को कॉम्प्लेक्स करके बनाया हुआ है, जिसको समझना आपके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको वर्किंग को जिस मर्जी स्टाइल की वर्किंग हो आपको उसी फॉर्मेट में प्रेजेंट करूँ जिससे आप फेमिलियर हैं। वही टी काउंट है, वही 3 वैल्यूज़ हैं, ला रहे हैं, चौथी बैलेंसिंग फिगर आ रही है। अब इंडिविजुअल वैल्यूज़ की कैलकुलेशन का पैटर्न, अगर जुमले फ़र्क लिखे हुए अंग्रेजी फ़र्क है तो उसके हिसाब से कैलकुलेशन का अंदाज हमारा बदल जाता है। बट आई एम ट्राइंग टू गिव यू द सेम फॉर्मेट टू वर्क ऑन, unless there is necessity to change the format, why we should?
लेकिन अनफॉर्चुनेटली आई कैप के सोल्यूशन में ये चीज़ नहीं होती, वहाँ पे फॉर्मेट्स बदलते रहते हैं क्योंकि वहाँ पे इंडिविजुअल्स बदलते रहते हैं, पेपर सेट करने वाले, पेपर का सोल्यूशन बनाने वाले। तो आपको हर इंडिविजुअल का फॉर्मेट नहीं सीखना, आपको एक फॉर्मेट सीखना है और उस पर प्रैक्टिस आपको करनी है कि हम उस फॉर्मेट को डिज़ाइन कर सकें और उस पर काम कर सकें एफिशिएंटली। जी एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? पेबल की फिगर रहेगी तो परचेजेज आ गई, तो पेबल में क्या दिक्कत है? कितने दिन की परचेज के बराबर है पेबल? 50 दिन की परचेज के बराबर है, तो वो यहीं पे कर देते हैं हम 792/360 × 50 जनाब 110.00 कैश 777.00। लीजिए जी, ये आपकी कैश पेमेंट्स अगेंस्ट लोकल परचेज आ गई 777.00। इस सवाल में सिर्फ यहाँ पे सिर्फ एक नई चीज़ डाली कि ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल का आपस में रिलेशनशिप कंजम्पशन से जोड़ दिया। नॉर्मली वो क्या कहता था, रॉ मटेरियल इज़ एक्स डेज ऑफ कंजम्पशन के बराबर है। यहाँ पे उसने ऐसे बात नहीं कही, उसने कहा जी इन्वेंट्री जो है वो रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री आपकी बदलेगी कंजम्पशन के वॉल्यूम के रेशो में, कंजम्पशन से रेशो में बदलेगी, जो एज अ परसेंट ऑफ कंजम्पशन इट विल बी द सेम। सो जितनी कंजम्पशन बढ़ेगी उतनी ही आपकी क्लोजिंग स्टॉक का लेवल बढ़ जाएगा। तो वो हमने उसको इनकॉर्पोरेट कर दिया, वॉल्यूम चेंज हमने क्लोजिंग स्टॉक में डाल दिया, प्राइस चेंज को हमने होल्ड किया हुआ था, वो हमने सिर्फ परचेजेज में आगे जाके इनकॉर्पोरेट करना था। अच्छा जी, अब हम लास्ट वैल्यू पेमेंट अगेंस्ट इंपोर्ट पे जाते हैं और यहाँ पे भी हम लेजर अकाउंट बनाएंगे, बट ये लेजर अकाउंट पेबल्स का नहीं है क्योंकि इंपोर्ट में हम कर रहे हैं एडवांस टू सप्लायर। इंपोर्ट हम कर रहे हैं एडवांस के अगेंस्ट। हमारा एडवांस इज एन एसेट, बैलेंस ब्रॉट डाउन होगा, यहां पे परचेजेस आएंगी और बैलेंस कैरी डाउन उसने बता दिया फ्यूचर में ज़ीरो होगा। फ्यूचर में एडवांसेस नहीं होंगे, फ्यूचर में आपके एडवांसेस ख़त्म हो जाएंगे और यहाँ पे फिर हमारी कैश की फिगर आ जाएगी। बैलेंस ब्रॉट डाउन एडवांस का गिवन है क्वेश्चन में, कितना? 30 मिलियन। बैलेंस ब्रॉट डाउन गिवन है, कैरी डाउन भी बता दिया कि फ्यूचर में एडवांस नहीं होने वाला, फ्यूचर में कैश अगेन ऑन डिलीवरी दिया जाएगा। अब हमें सिर्फ परचेजेस की फिगर चाहिए। ये वर्किंग हमारी 3 है, वर्किंग 3.1 हमें परचेजेस की बनानी है इसी अंदाज में। तो हमें पेमेंट्स टू सप्लायर अगेंस्ट रॉ मटेरियल, इंपोर्टेड रॉ मटेरियल मिल जाएंगी। अच्छा जी, इसको भी इसी अंदाज में अगर हम लेकर चलें, रॉ मटेरियल कंजम्पशन एट ओल्ड प्राइस, देन एड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, अब हम इंपोर्टेड रॉ मटेरियल की बात कर रहे हैं, लेस ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एट ओल्ड प्राइस, ये आपके पास आ जाएंगी परचेजेस, रॉ मटेरियल परचेजेस एट ओल्ड प्राइस। और फिर प्राइस इंक्रीज की हम बात करते हैं, उसको हमने कैसे इनकॉर्पोरेट करना है। सेम वही स्टेप्स हैं। रॉ मटेरियल कंजम्पशन पिछले साल 900 मिलियन का 40% थी, तो अगले साल इसमें सिर्फ वॉल्यूम का इजाफा आने वाला है 30%। कहाँ पर जाएगी जी? 468.00। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल उसने हमें क्वेश्चन में रेडिली बताया हुआ है 98 है, और हमें बताया गया है कि भाई जिस हिसाब से कंजम्पशन बढ़ेगी उसी हिसाब से बढ़नी है क्लोजिंग स्टॉक की क्वांटिटी, तो 98 इंटू 1.3 127.40। लीजिए जी, रॉ मटेरियल परचेजेज एट ओल्ड प्राइस 497.40। अच्छा, यहाँ पे इसके आगे थोड़ा सा एक, जैसे मैंने कहा आपको हर सवाल में नई चीज़ मिलती है आपको, इस सवाल में
एक नई चीज़ उसने पिछले पार्ट में इन्वेंट्री की डाली, और एक और नई चीज़ यहाँ पे है कि यहाँ पे पेबल नहीं है, एडवांसेस हैं। अब एडवांसेस की इम्प्लीकेशन क्या यहाँ पे आने वाली है, इसके बारे में आपको सोचने की ज़रूरत है। आप अकाउंटिंग जानते हैं, जब एडवांस पे किया जाता है तो परचेज ऑर्डर एट द टाइम ऑफ इशुएंस ऑफ एडवांस रेज किया जाता है, या परचेज ऑर्डर फ्यूचर में बाद में दिया जाता है? एडवांस के साथ परचेज ऑर्डर दे दिया जाता है। एग्रीड जी? हमारा पिछले साल के एंड पे एडवांस खड़ा हुआ है, इसका मतलब पिछले साल के एंड पे हम एक ऑर्डर प्लेस कर चुके हैं। परचेज कब रिकॉर्ड होती है? ऑर्डर प्लेस करते हुए डिलीवरी पे? डिलीवरी पे। इसका मतलब इस ऑर्डर के अगेंस्ट डिलीवरी हमें नेक्स्ट ईयर आनी है। इस ऑर्डर के अगेंस्ट डिलीवरी हमें परचेज हमने इसमें रिकॉर्ड करनी है। ऐसे ही है जी? ये जो 30 मिलियन की परचेज इसमें शामिल है। एग्रीड जी? एडवांस हमने बेशक पिछले साल दे दिया था, लेकिन परचेज हमारी डिलीवरी अगले साल आनी है, तो परचेज तो इसमें शामिल है। अब मुझे बताइए, हमने यहाँ पे तो सारी परचेज में प्राइस इंक्रीज डाल दिया, क्या यहाँ पे सारी परचेज में प्राइस इंक्रीज आएगा? 30 मिलियन पे प्राइस इंक्रीज नहीं आना, क्योंकि इसका एडवांस तो हम पिछले साल पे करके आए थे। तो हमने प्राइस इंक्रीज सब पे 1.3 नहीं डाल देना। इसकी प्राइस इंक्रीज की एडजस्टमेंट जो आएगी 497.40 माइनस 30, एडवांस निकालो, फिर इसमें प्राइस इंक्रीज डालो और 30 वापस ऐड कर दो। ये आपकी बजटेड परचेजेस आ रही हैं। कितनी है जी बजटेड परचेजेस? 544.14। ये हैं आपकी रॉ मटेरियल की परचेजेस, इंपोर्टेड रॉ मटेरियल की। आपने ये जो फॉर्मेट आपको दे दिया गया है, इसी फॉर्मेट को याद रखिएगा। पास्ट पेपर से इसके फॉर्मेट को फॉलो करने की, समझने की कोशिश ना कीजिएगा। यू विल वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम, उसके बाद भी शायद आपको चीज़ें समझ ना आ सकें। मैंने आपको सारी चीज़ें उसी फॉर्मेट पे प्रेजेंट की हैं जिससे आप फेमिलियर हैं। पिछली एग्जाम्पल में हम इस फॉर्मेट को इस्तेमाल करते आए हैं। रॉ मटेरियल परचेजेस की फिगर आ गई इंपोर्टेड 544.14। तो यहाँ से आप कैश की फिगर निकाल लीजिए 514.14, 514.14 नेट 744.38 नेट इज रिसीट। जी जनाब, एनी क्वेश्चन? कोई वैल्यू समझ नहीं आई पूछिए। पेबल से हम डील करते आ रहे थे, क्रेडिट पे परचेजेस से हम डील करते आ रहे थे, एडवांस पे परचेजेस का भी एक सिनेरियो आ गया हमारे सामने, तो उसको भी आपने देख लिया। FIFO है, पेबल्स है, कैसे वर्किंग होती है, FIFO है, एडवांसेस हैं, कैसे वर्किंग होती है। ये दोनों चीज़ें आपके सामने नज़र आ रही हैं। अच्छा जी, कैश बजटिंग का इस राउंड का आखिरी क्वेश्चन, जिसके बाद फिर हमें मज़ीद आगे कुछ डिस्कशन करनी है। क्वीन ज्यूल्स, ऑटम 15, क्वेश्चन 6। दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन इन द न्यू स्कीम ऑन द बजटिंग। ऑटम 15 में नई स्कीम में बजटिंग शामिल हुआ था, और ये पहला सवाल हमें आया था बजटिंग के ऊपर। इट वाज फ्रॉम द कैश बजटिंग, ऑटम 15, क्वेश्चन 6। क्वीन ज्यूल्स रिक्वायरमेंट क्या जी? प्रिपेयर अ कैश बजट फॉर द क्वार्टर एंडिंग 31 दिसंबर 2015। मंथ वाइज कैश बजट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। अगर ये ना देता, लिखता, तो शायद हमें मंथ वाइज बनाना पड़ता। मैंने आपको गाइडलाइन दी हुई है कि कैश बजट जनरली हम स्मॉलर पीरियड्स में बनाते हैं इफ़ इंफॉर्मेशन परमिट्स। अगर इंफॉर्मेशन अलाउ करे तो हम उसको क्वार्टरली बजट को मंथली बनाएंगे, लेकिन उसने लिख दिया मंथली नहीं चाहिए, तो हम इसको एक कॉलम में ही बना रहे होंगे। रिसीट पेमेंट एक कॉलम में ही आएंगी सारी। क्वीन ज्यूल्स डील्स इन इमिटेटेड
ornaments and operates its business online through a web portal. अब यहाँ पे सवाल में ना आपको, मैं वैसे तो हर सवाल में ही मैं आपको कहता हूँ कि क्वेश्चन रीडिंग और सिनेरियो को समझना बड़ा अहम है, लेकिन यहाँ पे अगर आप यहाँ पे आपको ये चीज़ रजिस्टर होगी कि क्वेश्चन को पढ़ के अगर सिनेरियो ना समझा तो फ़ायदा ही कोई नहीं, आपसे मसला कहीं आपको एक कदम नहीं उठाया जाएगा यहाँ पे। तो रीडिंग इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, और उसमें बिजनेस को समझना, जिस बिजनेस का वो सवाल है उस बिजनेस की ट्रांजैक्शन को, उसकी टर्म्स को अच्छी तरह समझना बड़ा ज़रूरी होता है। जैसे अब यहाँ पे हम देखते हैं तो ऑर्डर्स आर रिसीव्ड थ्रू द वेबसाइट एंड डिस्पैच थ्रू अ कोरियर। द मोड ऑफ पेमेंट्स अवेलेबल टू कस्टमर्स आर एज फॉलोज। कैश ऑन डिलीवरी विच इज कलेक्टेड बाय द कोरियर, मतलब वेबसाइट पे ऑर्डर करो, कैश ऑन डिलीवरी सिलेक्ट कर दो, वेबसाइट पे ऑर्डर होगा, कोरियर वाला डिलीवरी लेके जाएगा तो चीज़ें देगा, पैसे ले लेगा आपसे। दिस ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 2, एडवांस पेमेंट थ्रू क्रेडिट कार्ड। ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हो, वहीं पे ही क्रेडिट कार्ड से आप पेमेंट कर दो, डिलीवरी बहरहाल आपको फॉलो करेगी बाद में। सो एक है डिलीवरी लेके कैश दो, एक है ऑनलाइन जब ऑर्डर कर रहे हो वहीं पे आप क्रेडिट कार्ड से कैश पेमेंट कर दो। कैश कलेक्टेड बाय द कोरियर इज सेटल्ड आफ्टर एवरी 7 days, मतलब जब कैश कलेक्ट होगा उसके 7 दिन बाद आपको मिलेगा। कंपनी, हमारे लिए तो मैटर करता है कंपनी की जेब में कब आ रहा है, तो कोरियर कंपनी आपको 7 दिन बाद सेटल करती है आपसे। द कोरियर कंपनी चार्जेस आर ₹300 पर ऑर्डर विच आर डिडक्टेड ऑन अ मंथली बेसिस फ्रॉम द फर्स्ट पेमेंट ड्यू इन द सब्सिक्वेंट मंथ। पूरे महीने के जो ऑर्डर्स के अगेंस्ट 300 के हिसाब से चार्जेस अगले महीने कट जाएंगे। पेमेंट थ्रू क्रेडिट कार्ड्स आर क्रेडिटेड बाय द बैंक इन 7 days। आज कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस किया, आज कस्टमर ने एडवांस दे दिया, आपको कितने दिन बाद मिलेंगे? 7 दिन बाद। आगे चलते हैं। हाई वैल्यू आइटम्स विच रिप्रेजेंट 25% ऑफ सेल्स थ्रू क्रेडिट कार्ड आर डिस्पैच्ड आफ्टर 15 days ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट। ऑल अदर डिस्पैचेस आर मेड इमीडिएटली एंड डिलीवर्ड ऑन द सेम डे। यहाँ तक ना हमारा पूरा कस्टमर से जो लेन देन है वो इस्टेब्लिश होता है। क्या हमारी रिसीट्स की पॉलिसी यहाँ तक क्लियर होती है? मैं इसको अगर समराइज करूँ, कस्टमर वेबसाइट पे ऑर्डर देता है और अगर आप जुमला पढ़ लो, ऑल डिस्पैचेस आर मेड इमीडिएटली, जब ऑर्डर आए फौरन डिस्पैच चला जाता है। कस्टमर ऑर्डर करने की पेमेंट के 2 मोड्स ऑप्ट कर सकता है। आज ऑर्डर कर रहे हैं, ये चीज़ तो एस्टैब्लिश है, आज ऑर्डर आज डिलीवरी हो जानी है, ये तो क्लियर हो गया, फौरन डिलीवरी हो जाती है। पेमेंट के 2 मोड हो सकते हैं। हो सकता है कस्टमर कहे मैं कैश ऑन डिलीवरी दूंगा, कि भाई मैंने ऑर्डर दे दिया है, मुझे आप डिलीवरी भिजवाइए, पैसे ले लीजिए। दिस इज़ वन मैथड। इस मैथड में कंपनी को ऑर्डर प्लस सेल, वो तो एक ही दिन में होगी ना, जिस दिन ऑर्डर उस दिन सेल होगी। अगर कैश ऑन डिलीवरी पर चलें तो कंपनी को पैसा सेल के कितने दिन बाद आ रहा है? 7 दिन बाद। बिल्कुल ठीक हो गया जी। दूसरा मेथड क्या है? क्रेडिट कार्ड से एडवांस पेमेंट। आज ऑर्डर करो, आज क्रेडिट कार्ड से पेमेंट लिंक कर दो, डिलीवरी भी आज हो जाएगी, कंपनी को पैसे कितने दिन बाद मिलेंगे? तो कैश एंड डिलीवरी हो या क्रेडिट कार्ड हो, कंपनी के लिए कोई फ़र्क है? कंपनी के लिए कोई फ़र्क नहीं है। कंपनी के लिए दोनों से एक जैसी हैं। सेल्स के 7 दिन बाद पैसे आते हैं। हाँ, फ़र्क कहाँ पे है? हाई वैल्यू आइटम में, जो कितनी है? क्रेडिट कार्ड की सेल्स का 25%। क्रेडिट कार्ड की सेल कितनी है? 40%। तो 40 का 25% कितना बना? 10। टोटल सेल का 10% हाई वैल्यू आइटम है, उसका फर्क है। टोटल सेल में से 90% ऑर्डिनरी आइटम है, उनका तरीका क्या है? आज सेल होगी, 7 दिन बाद पैसा आएगा। लेकिन हाई वैल्यू आइटम जो टोटल सेल का 10% है, उसका मेथड थोड़ा फर्क है। वो कहता है जी आर डिस्पैच्ड आफ्टर 15 days ऑफ पेमेंट। पेमेंट के 15 दिन बाद। इसमें एक, इस जुमले में ना एक ये वर्ड निकाल दे, रिसीट ऑफ पेमेंट निकाल दीजिए, 15 days ऑफ पेमेंट कर दीजिए। ये मेरे हिसाब से ये टाइपो ही हमको लेके चलते हैं। 15 days ऑफ पेमेंट, ठीक है जी, रिसीट ऑफ निकाल दीजिए। तो ये कलादा है। वहाँ पे क्या था? ऑर्डर वाले दिन
और यहाँ पे क्या है, पेमेंट के 15 दिन बाद ये कार्ड्स के अगेंस्ट सिर्फ हाई वैल्यू आइटम सप्लाई की जाती हैं, एडवांस के अगेंस्ट सप्लाई की जाती हैं, कैश ऑन डिलीवरी नहीं है। आगे चलते हैं जी, रिसीट को हमने समझ लिया, इससे आगे चलते हैं। द फॉलोइंग फर्दर इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। सेल्स आर मेड एट कॉस्ट प्लस 30%। सेल्स एंड सेल्स ऑर्डर्स आर प्रोजेक्टेड एज अंडर। सितंबर से लेकर जनवरी तक हमें सेल्स इन वैल्यू और सेल्स ऑर्डर्स के नंबर्स बताए गए हैं। सेल्स इन वैल्यूज़ हमें रिसीट्स मेजर करने में हेल्प करेंगी, और सेल्स ऑर्डर हमें कमीशन जो कटनी है 300 रुपये पर ऑर्डर के हिसाब से, वहाँ पे मेरे काम आएंगे। हाई वैल्यू आइटम्स आर परचेज ऑन रिसीट ऑफ ऑर्डर। स्टॉक लेवल्स ऑफ अदर गुड्स इज मेंटेन्ड at 25% of projected sales of the next month। हाई वैल्यू आइटम का कोई स्टॉक नहीं है, जब ऑर्डर आता है तब खरीदते हैं और भेज देते हैं आगे, लेकिन उसके अलावा जितनी भी आइटम्स हैं जो हम बेचते हैं उसके नेक्स्ट मंथ की प्रोजेक्टेड रिक्वायरमेंट का 25% हम स्टॉक में रखते हैं। 40% ऑफ ऑल परचेजेस आर पेड इन द सेम मंथ्स, वेयर एज बैलेंस इज पेड इन द नेक्स्ट मंथ। क्रेडिटर्स का पैटर्न आ गया कि हमारे क्रेडिटर्स जो होते हैं वो 60% ऑफ एवरी मंथ परचेज होते हैं। परचेजेज ड्यूरिंग द मंथ ऑफ सितंबर अमाउंटेड टू 3.2 million। सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस आर एस्टिमेटेड एट 50 million per annum and include depreciation of tangible and amortization of intangible assets amounting to 8 and 2 million respectively। Cash and bank balance as at 30th September 2015 amounted to 5.5 million। Purchases, sales occur evenly throughout the quarter। ये थ्रू द क्वार्टर उसने बात अजीब सी कर दी, ऊपर उसने सारा पैटर्न बता दिया है, सेल्स का पैटर्न भी बता दिया है, परचेज का पैटर्न भी बता दिया, तो ये जुमला मुझे थोड़ा सा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट सा लग रहा है। क्या ख्याल है, ऐसा नहीं है? क्वार्टर में हमारी सेल्स इवनली तो नहीं है, ऊपर उसने बताया हुआ मंथली सेल्स कैसी हैं। इवनली का मतलब हर महीने बराबर सेल है। हमारी परचेजेस भी क्वार्टर में इवनली नहीं होंगी, क्योंकि उसने परचेजेस का पैटर्न बता दिया कि भाई अगले महीने की सेल की हिसाब से हमने 25% क्लोजिंग स्टॉक रखना है, तो जिस हिसाब से क्लोजिंग स्टॉक रख रहे हैं, सेल बदलेंगे तो क्लोजिंग स्टॉक बदलेगा, क्लोजिंग स्टॉक बदलेगा तो परचेजेस भी हर साल बदल जाएंगी। तो ये जुमला मुझे ज़रा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लग रहा है थ्रू आउट द ईयर। मुझे लगता है जुमला, इसको भी आप काट दीजिए, ये रॉन्ग है। अनफॉर्चुनेटली दिस इज हाउ यू डील विद ICAP। क्योंकि सारी बात है, आप या इस जुमले को फॉलो कर सकते हैं या ऊपर को फॉलो कर सकते हैं, या आप जैसे उसने पैटर्न बताया नोट नंबर 3, 4, 5 में उसको फॉलो करेंगे, या नोट नंबर 7 को फॉलो करेंगे। सो मुझे लगता है कि 3, 4, 5 जो नोट नंबर 2, 3, 4, 5 हैं वो हमारे लिए शायद हैं, ये इरेलेवेंट है, इसको आप छोड़ दीजिए। मैं कहूँगा ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है और आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है। सो नोट नंबर 7 भी आपका यहाँ पे इस्तेमाल नहीं होने वाला। हाँ, यहाँ पे ये हो सकता था अकर इवनली थ्रू द मंथ होता, लेकिन उसकी भी ज़रूरत नहीं थी लिखने की। एनीवेज, एक दफ़ा इस सवाल को फिर पढ़ लीजिए जी, उसके बाद हम इस पे डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। मैंने आपको सिनेरियो एक्सप्लेन कर दिया है, एक दफ़ा फिर रीड आउट करें ताकि एब्जॉर्ब कर सकें इसको और जितने वेरिएबल्स हैं उनको रिटेन कर सकें।
ये जी कैश बजट का फॉर्मेट, हमारे पास रिसीट्स दो आइटम्स की हैं, एक ऑर्डनरी आइटम्स, हाई वैल्यू आइटम। इन दोनों को मैं अलहदा करना पड़ा क्योंकि दोनों का कलेक्शन पैटर्न फ़र्क है, और फिर हमें कलेक्शन में से जो टोटल रिसीट्स है उसमें से डिडक्शन होनी है कोरियर चार्जेस की, वो हमने लिख दी है। देन हमारी परचेजेस हैं और एक्सपेंसेस हैं, यहाँ से विल हैव नेट कैश रिसीट पेमेंट, देन ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड। दिस इज द कंप्लीट कैश बजट फॉर द क्वार्टर। इजी फिगर फर्स्ट, कोरियर चार्जेस और एक्सपेंसेस, ये दो बड़ी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड फिगर्स हैं, पहले इनको डील कर लेते हैं। कोरियर चार्जेस के बारे में उसने कहा कि जिस महीने डिलीवरी जाती है उससे अगले महीने कटते हैं। इसका मतलब हमें अक्टूबर नवंबर दिसंबर का बजट बनाना है। अक्टूबर नवंबर दिसंबर में किन किन महीने के ऑर्डर के चार्जेस कटेंगे? सितंबर अक्टूबर नवंबर। सितंबर 400, अक्टूबर 450, नवंबर 470 इंटू 300। लीजिए कितने बने चार्जेस? 396,000। ये आपके कोरियर चार्जेस हैं। और एक्सपेंसेस के लिए नोट नंबर 5 उसने बताया हुआ है कि टोटल आर एस्टिमेटेड एट 50 मिलियन पर एनम, जिसमें से नॉन कैश है 50 मिलियन पर एनम है। हमें तो कैश बजट में कैश एक्सपेंसेस चाहिए होते हैं, तो 8 मिलियन एक नॉन कैश है, 2 मिलियन एक नॉन कैश है, तो कैश एक्सपेंडिचर बचा कितना? 40 मिलियन। बट ये तो सालाना है, बजट क्या बन रहा है? क्वार्टरली। 4 से डिवाइड कर दो। पेमेंट पैटर्न नहीं बताया तो हम अज्यूम करेंगे जैसे खर्चा वैसे पेमेंट। साल का कैश एक्सपेंडिचर 10 मिलियन। ये दो फिगर्स सिंपल थी, सबसे पहले पढ़ने में ही हमें क्लिक हो गई, इनको हमने एज इट इज़ क्विकली ट्रीट कर दिया। इजी फिगर्स फर्स्ट, पहले हमने ट्रीट कर दिया इनको। फॉर्मेट अगर आप क्वेश्चन को पढ़ के डिवाइस कर पाते हैं तो इस तरह के इजी नंबर आप बड़ी आसानी से स्कोर कर लेते हैं क्विकली विदाउट गेटिंग इनटू एनी ट्रबल। अब हम वन बाय वन से वर्किंग 1, वर्किंग 2 एंड वर्किंग 3, ये 3 वर्किंग बनाएंगे, 3 वैल्यूज आएंगी, कैश बजट कंप्लीट हो जाएगा हमारा। ऑर्डिनरी आइटम्स की सेल हमारी टोटल सेल का कितने परसेंट है? हाई वैल्यू आइटम की सेल हमारी टोटल सेल का कितने परसेंट है? 10%। हाई वैल्यू आइटम की सेल हमारी टोटल सेल का 10% है। हाई वैल्यू आइटम की सेल क्रेडिट कार्ड के अगेंस्ट सेल का 25 है, तो क्रेडिट कार्ड की सेल तो पहले 40% है, तो टोटल सेल का 40% और 40 का फर्दर 25%, तो इट कम्स टू 10%। हाई वैल्यू आइटम हमारी 10% है, तो इसका मतलब ऑर्डनरी आइटम हमारी 90% है। और हमने ये डिस्कस कर लिया था कि ऑर्डिनरी आइटम कैश ऑन डिलीवरी पे जाएं या ऑर्डिनरी आइटम क्रेडिट कार्ड पे जाएं, हमारे लिए ये दोनों एक बराबर हैं। कंपनी के लिए ये दोनों एक बराबर हैं। दोनों सिनेरियो में इसकी कैश रिकवरी सेल के 7 दिन बाद है। रिसीट्स सेल के 7 दिन बाद होना, इसका क्या मतलब है? हमारा डेटर बैलेंस 7 दिन की सेल के बराबर है। डेटर बैलेंस आ गया तो रिसीट फ्रॉम क्रेडिट सेल निकालने के लिए यू नीड लेजर अकाउंट। आपको एक लेजर अकाउंट चाहिए, वर्किंग 1। ये आपका है जी रिसीवेबल्स, ऑर्डिनरी आइटम्स, ऑर्डिनरी आइटम्स के अगेंस्ट रिसीवेबल। और रिसीवेबल का खाता होता है जी आपका बैलेंस ब्रॉट डाउन, फिर आपकी सेल्स, बैलेंस कैरिड डाउन और यहाँ पे कैश रिसीट। ये वर्किंग 1 है जी। 1.1 ओपनिंग बैलेंस के लिए बनाते हैं, 1.2 हम सेल्स के लिए बनाते हैं और 1.3 हम क्लोजिंग बैलेंस के लिए बनाते हैं। कैश की फिगर हमारी बैलेंसिंग आएगी। हम अक्टूबर नवंबर दिसंबर इस क्वार्टर का बजट बना रहे हैं ना, तो 1 अक्टूबर का ओपनिंग बैलेंस है बरात, 30 सितंबर का क्लोजिंग ना, तो 30 सितंबर का क्लोजिंग बैलेंस, 30 सितंबर की सेल्स, 7 दिन की सेल्स। सितंबर की सेल्स कितनी है? 4.6 मिलियन। 4.6 मिलियन है, लेकिन ये तो टोटल सेल है, हम तो ऑर्डिनरी आइटम्स की बात कर रहे हैं, वो तो
90% होती हैं। और 7 दिन की सेल्स नॉर्मली हमें जब मंथ्स में हम जाते हैं तो इट इज़ नॉट लाइक कि हम 30 और 31 और 28 दिनों के चक्कर में पड़ते हैं, हम नॉर्मली 30 डेज अ मंथ ट्रीट करते हैं, ठीक है जी। सो ये पूरे महीने की सेल्स हैं, डिवाइड बाय 30 इंटू 7, ये बैलेंस ब्रॉट डाउन हमारे पास आ जाएगा कितना जी? 966000। दिस इज आवर बैलेंस ब्रॉट डाउन। हमारी पूरे महीने सितंबर की सेल कितनी थी? उसका 90% ऑर्डिनरी आइटम होती हैं, और हमने पढ़ा था कि सेल्स के 7 दिन बाद पैसे आते हैं। इसका मतलब 30 सितंबर को जो हमारा रिसीवेबल का बैलेंस होगा सितंबर की 7 दिन की सेल के बराबर होगा। ये हमारा बैलेंस ब्रॉट डाउन है। देन सेल्स, ऑर्डिनरी आइटम्स की सेल्स अक्टूबर में 5 मिलियन, नवंबर में 4.2 मिलियन, दिसंबर में 5.8 मिलियन। इसका 90% हमारी ऑर्डिनरी आइटम की सेल्स हैं जी। कितना बना? 13.5 मिलियन। ये हमारी ऑर्डिनरी आइटम की सेल है। वर्किंग 1.2, 13.5 मिलियन। हमारा बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्वार्टर का कैश बजट बन रहा है। 1 अक्टूबर का बैलेंस ओपनिंग, 30 सितंबर का क्लोजिंग बैलेंस बनता है। 30 सितंबर को रिसीवेबल कितने थे? सितंबर की सेल का 7 दिन, और हम ऑर्डरिंग आइटम से बात कर रहे हैं जो टोटल सेल का 90% होता है। तो वर्किंग 1.1, बैलेंस ब्रॉट डाउन 966,000। सेल्स, क्वार्टर की सेल्स, पूरे क्वार्टर की सेल्स, ऑर्डिनरी आइटम की सेल, टोटल सेल का 90%, 13.5 मिलियन। बैलेंस कैरिड डाउन किस महीने की सेल पे डिपेंड करेगा? दिसंबर की सेल पे। बैलेंस कैरिड डाउन डिपेंड करेगा दिसंबर की सेल पे, और दिसंबर की सेल है 5.8 का 90%, डिवाइड विद 30 इंटू 7, कितना है जी? 1218,000, 1218,000। ये हमारी वर्किंग 1.3, 1218,000। नाउ यू कैन हैव द कैश कलेक्शन 13248000, 13248000। अच्छा जी, अब हम हाई वैल्यू आइटम की बात करें ज़रा। हाई वैल्यू आइटम का सिस्टम फिर समझ लो ज़रा। हमने पढ़ा कि हाई वैल्यू आइटम में पेमेंट के 15 दिन बाद, पहली बात हाई वैल्यू आइटम की सेल सिर्फ क्रेडिट कार्ड 10% है और क्रेडिट कार्ड के अगेंस्ट है, और क्रेडिट कार्ड पे एडवांस पेमेंट की जाती है, ऐसे ही है जी। हाई वैल्यू आइटम पेमेंट के कितने दिन बाद डिस्पैच होती है? 15 दिन बाद। और हमें पेमेंट के कितने दिन बाद पैसे मिल जाते हैं? 7 दिन बाद। मतलब आज कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस किया, हमें आज से 7 दिन बाद पैसे मिल जाएंगे, और उसके फर्दर कितने दिन बाद डिस्पैच होना है? 8 दिन बाद। इसका मतलब दिस इज अ सिनेरियो ऑफ सेल अगेंस्ट एडवांस, एडवांसेस फ्रॉम कस्टमर। कस्टमर से आपके पास पैसा आ जाता है पहले, और पैसे आने के आप 8 दिन बाद सेल करते हैं, ऐसा ही है ना। कस्टमर आज क्रेडिट कार्ड पे पेमेंट करेगा, आपको आज से 7 दिन बाद पैसा मिल जाएगा, और उसके फर्दर 8 दिन बाद आपने डिस्पैच करना है। इसका मतलब 8 दिन पहले आपके पास पैसा आ जाता है। वर्किंग 2 आपका जो अकाउंट बनेगा, दैट विल बी एडवांसेस फ्रॉम कस्टमर, दैट विल बी एडवांस फ्रॉम कस्टमर, और ये हाई वैल्यू आइटम के लिए है। ऑर्डिनरी आइटम्स के अगेंस्ट रिसीवेबल था आपका, क्योंकि वहां पे आप आज ऑर्डर आया आज ही डिस्पैच कर देते हो, पेमेंट आपको डिस्पैच के 7 दिन बाद आ रही है। और हाई वैल्यू आइटम आज ऑर्डर आया 7 दिन बाद पेमेंट आ जाएगी, उसके मजीद 8 दिन बाद डिस्पैच कर रहे हो।
मतलब पेमेंट आने के 8 दिन बाद डिस्पैच करते हो। तो यहां पे आपका एडवांसेस फ्रॉम कस्टमर इज योर लायबिलिटी, बैलेंस ब्रॉट डाउन। यहां पे आपका सेल्स और यहां पे आपका फिर कैरी डाउन, और इधर आपकी शायद कैश रिसीट की फिगर आती है। सो ये अगर आपकी वर्किंग 3 है तो 3.1, वर्किंग 2 है जी, वर्किंग 2 है तो दिस इज 2.1, 2.2, 2.3 एंड दिस इज योर बैलेंसिंग फिगर। आपको सेल्स से 8 दिन पहले पैसे आते हैं, यही बात की ना हमने। इसका मतलब आपकी अक्टूबर के जो पहले 8 दिन की सेल हैं, इसके पैसे कब मिल गए थे आपको? अक्टूबर के 8 दिन की सेल का पैसा सितंबर में आ गया था। ये आपका बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैलेंस ब्रॉट डाउन आपका क्या है? ये अक्टूबर सेल्स रिसीव्ड इन सितंबर, ये आपका बैलेंस ब्रॉट डाउन है, ठीक है जी। और अक्टूबर की सेल्स कितनी थी? 5 मिलियन, लेकिन हम तो हाई वैल्यू की बात कर रहे हैं जो कि सिर्फ 10% थी। तो अक्टूबर की सेल्स हाई वैल्यू की कितनी है? इसमें से 8 दिन की सेल्स का पैसा हमें सितंबर में आ चुका है। कितना पैसा है? 1। बेटा मैंने 5 मिलियन की फिगर पूरी लिखी हुई है, पॉइंट्स तो नहीं आते ना कहीं। बेटा 1 मिलियन है, 1 लाख है, क्या है? 1 2 3 4 5, खत्म होगी कहानी। तो ये तो 1,33,000 बने ना, ये कह रहे हैं आप? ठीक हो गया जी। बैलेंस ब्रॉट डाउन 133,333, इसको ये कहते हैं 133,333 हमारा एडवांस अगेंस्ट सेल्स। कस्टमर से हमें एडवांस आया। अब मैं जो आपको क्वेश्चन शुरू करते हुए बात कही थी कि अगर आपने एक बिजनेस को नहीं समझा, कहानी को नहीं समझा, तो आप इनमें से शायद कोई भी फिगर वर्कआउट नहीं कर पाओगे। आपसे ना रसीद निकलेगी ना पेमेंट निकलेगी। बहुत ज़रूरी है कि आप बिजनेस को समझो, बिजनेस कैसे हो रहा है, और उसके लिए शायद अगर आप खुद अपने आप को बिजनेस का ओनर या मैनेजर समझोगे तो ही आपके लिए चीज़ों को एब्जॉर्ब करना आसान होगा। अगर आप इसको एज अ स्टूडेंट एज अ मैथमेटिकल प्रॉब्लम लेके चलोगे तो चीज़ें समझ नहीं आएंगी। आप सोचो कि मैं मैनेजर हूँ इस कारोबार का, मैं मालिक हूँ इस कारोबार का, तो मुझे ये चीज़ों को देखना है, चलाना है, कैसे चलाना है, फिर आपको चीज़ें ज़्यादा बेहतर अंदाज में समझ आनी शुरू होंगी। 2.2 वर्किंग, हमें सेल्स चाहिए। हाई वैल्यू आइटम की सेल्स 5 मिलियन, 4.2 मिलियन प्लस 5.8 मिलियन का 10%। कितनी है जी हाई वैल्यू आइटम की सेल्स? 1.5 मिलियन रुपीज। 1.5 मिलियन हाई वैल्यू आइटम की सेल्स, 1.5 मिलियन। एडवांसेस फ्रॉम कस्टमर बैलेंस कैरिड डाउन। हम क्वार्टर का अक्टूबर नवंबर दिसंबर का कैश बजट बना रहे हैं। 31 दिसंबर को हमारे पास एडवांस स्टैंड करेगा। यस। किस पीरियड की सेल के अगेंस्ट? जनवरी में जो हमने सेल करनी है, 8 दिन की सेल। सो वर्किंग 2.3, ये है बेसिकली जनवरीज सेल्स रिसीव्ड इन दिसंबर। ये हमारा बैलेंस कैरी डाउन जो आ रहा है। जनवरी की सेल जो दिसंबर में आ गई हैं वो हमारा बैलेंस कैरी डाउन है। तो जनवरी की सेल्स कितनी है? 6 मिलियन। ये तो टोटल है ना, हाई वैल्यू की बात कर रहे हैं, वो तो 10% है। तो जनवरी की सेल्स हाई वैल्यू आइटम की क्या है, और 8 दिन की सेल एडवांस में आती हैं। कितना बना एडवांस? 160,000 रुपीज। ये आपका बैलेंस कैरी डाउन 160,000। लीजिए जी कैश बैलेंसिंग फिगर 152 667 152 667।
लीजिए जी, रिसीट्स की साइड हमारी कंप्लीट हुई। एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? क्वीन जूल्स में हमने रिसीट्स की साइड ले ली, एक्सपेंसेस को भी हमने देख लिया है, हमारी सिर्फ परचेजेस की वर्किंग रह गई है, कैश पेमेंट्स अगेंस्ट परचेजेस। कोई चीज़ समझ नहीं आई पूछिए। कैश बजट को हमने उसी पैटर्न पे सिंपल जैसे हम लेते आ रहे हैं वैसे करते जा रहे हैं प्रेजेंट, और तमाम रिसीट्स और पेमेंट्स की वर्किंग भी हम उसी पैटर्न पे कंसिस्टेंटली प्रेजेंट कर रहे हैं जैसे हमने पहले कैश बजट के सवाल से शायद सीखा था। अच्छा जी, हमारी ये जो पेमेंट अगेंस्ट परचेजेस की फिगर है इस पे हम कल काम करेंगे। हमारा आज का वक्त ख़त्म हो रहा है, इस पे मज़ीद हमें 15-10 मिनट लगने हैं, तो इसको हम इंशाल्लाह कल देखेंगे और कल ही फिर हम बजटिंग पे डिस्कशन आगे लेके चलेंगे। और हो सकता है बजटिंग पे डिस्कशन कल हम कंक्लूड करके आगे को चलें। कुछ सवाल हैं बजटिंग के, वो आप समझिए आपके होम प्रैक्टिस के लिए हैं, ज़रूरत पड़ी तो रिवीजन क्लास में उनको हम टच करेंगे। फ़िलहाल के लिए इतने ही क्वेश्चन काफ़ी हैं, तो कल हो सकता है हम बजटिंग को क्लोज़ कर दें और परसों से हम नेक्स्ट चैप्टर पे डिस्कशन स्टार्ट करें। बाकी क्वेश्चन बजटिंग के अगर हम करेंगे तो इंशाल्लाह रिवीजन में उसको देख लेंगे, हमें ज़रूरत लगी तो। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।